So today's topic is retreating and post monsoon. Okay? Means when monsoon used to retreat, when it goes away, at that time your monsoon retreat. So in this case, during October November, ठीक है, what happens? Monsoon trough हमारा जो है low pressure की तरफ चला जाता है and becomes weaker. Required during October November. Trough, monsoon trough. Here your monsoon it becomes weaker during monsoon. Clear? So it is very important that from this time, from November to October, your monsoon starts retreating. ठीक है? और इसमें क्या होता है? The south west monsoon winds they weaken, ठीक है? And it starts withdrawing, right? South west monsoon also weakens. South west monsoon weakens, ठीक है? And causes withdrawal of monsoon, ठीक है? इससे मानसून हमारा विड्रॉल हो जाता है. It causes withdrawal of monsoon. Understood? So in this manner, the months of October, November form a period of transition. ठीक है? From hot rainy season to dry winter. ठीक है? ये जो है क्या कहते हैं, अक्टूबर नवंबर से your winter becomes dry. ठीक है? After October November, ठीक है, right? Dry winter starts. Dry winter it starts. Clear? अब जो है आपका मानसून नहीं बचा, right? So winter becomes dry. There is no rainfall. Understand? So in this manner, you have got the retreat of the monsoon is marked by clear skies and rise in temperature. ठीक है? अब sky will become clear and temperature will rise. It means monsoon has withdrawn. ठीक है? जब sky clear हो जाता है, ठीक है, and you know everything becomes, temperature becomes quite rising. ठीक है? तब हम कहते हैं कि monsoon हमारा withdrawal हो गया है. ठीक है? So day temperatures are high and nights are cold and pleasant. Winter season में क्या होता है? Day temperature थोड़ा हाई हो जाता है इन कंपैरिजन टू नाइट टेम्परेचर. ठीक है? और थोड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर होता है एंड द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट. लेकिन हम लोग की जो लैंड होता है, जमीन, विंटर सीजन में अभी भी मॉइस्ट रहता है. मॉइस्ट मीन्स इट हैज सम वाटर वेपर कॉन्टेंट, वाटर कॉन्टेंट. ठीक है? इसलिए उसको कहते हैं इट इज मॉइस्ट, राइट? सो इन दिस मैनर यू हैव गॉट various kinds of high temperature and humidity. ठीक है? And weather becomes rather oppressive during the day. ठीक है? और ये जो होता है, mercury begins to fall rapidly in northern India. ठीक है? mercury falls in northern India. ठीक है? जो हमारा इंडिया का नॉर्थ पोर्शन है, those portion mercury starts falling. Why? Because of western cyclonic disturbances. ठीक है? और इससे क्या होता है? This is commonly known as October heat. ठीक है? In northern India. ठीक है? Right? This is commonly known as October heat. Commonly known as अक्टूबर हीट. जो मरकरी फॉल करता है उसको हम अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं. ठीक है? When mercury falls, instant starts falling in northern India, that portion during the day वो भी कब?
ड्यूरिंग द डे, ठीक है, राइट। ये कब होता है? डे में भी हमारा एकदम हो जाता है, ड्यूरिंग द डे, ठीक है। इट हैपेंस ड्यूरिंग द डे, दिन में भी टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज अक्टूबर हीट, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे द मर्करी बिगिंस टू फॉर्म रैपिडली इन नॉर्दर्न इंडिया एंड द लो प्रेशर कंडीशंस देयर डेवलप्स, ठीक है। और हमारा पूरा का पूरा जो है ये जो हमारा मानसून है इट हैड कम्प्लीटली डिपार्टेड, ठीक है। यहाँ से इसका बैकग्राउंड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो अंडमान सी है, ठीक है, वहाँ कुछ साइक्लोन्स होते हैं, साइक्लोन्स कम्स इन अंडमान एंड निकोबार एरिया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, साइक्लोन मतलब तूफान विच कम्स फ्रॉम ओशन और सी, ठीक है, दे कम फ्रॉम ओशन और सी, सच टाइप ऑफ साइक्लोन कम्स, ठीक है, दे ओरिजिनेट, दैट्स व्हाई इन सम पोर्शन देयर इज हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेन, ठीक है। इन कोस्टल एरिया देयर इज हैवी, ठीक है, रेन ड्यू टू साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन की वजह से विंटर सीजन में, ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठीक है, हमारे कोस्टल एरिया में रेनफॉल होता है विंटर सीजन में, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ साइक्लोन, क्लियर। तो ये जो हमारा साइक्लोन है, दिस साइक्लोन जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, cause heavy and widespread rain, and these tropical cyclones they are often, ठीक है, very destructive. Destructive कैसे है? Because we don't mean we have no idea that cyclone will come, ठीक है, it comes accidentally. Cyclone they comes accidentally. That's why there is destruction. खूब तोड़फोड़ होता है, right? एंड द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टा, जैसे आपका गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है, तो डेफिनेटली देयर विल बी डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, है कि नहीं? देयर विल बी डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, देयर विल बी डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी in thickly populated area, ठीक है, अंडरस्टैंड। जहाँ thickly populated area है वहाँ पे बहुत डैमेज हो जाता है, ठीक है। and it happens sometimes these cyclones arrive at the coast of Odisha, कभी कभी उड़ीसा के कोस्ट पर भी आ जाता है, तो वहाँ भी डैमेज होगा, है कि नहीं। वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, यहाँ खूब ऐसे होता है, ठीक है। एंड बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ कोरोमंडल कोस्ट इज डिवाइज्ड फ्रॉम डिप्रेशन एंड साइक्लोन, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट में भी इस तरह के साइक्लोन्स आते हैं, अंडरस्टैंड। इसकी वजह से क्या है, काफ़ी लॉस होता है, बिकॉज वी आर नॉट रेडी फॉर इट, किसी को नहीं पता कब साइक्लोन आएगा, ठीक है। तो पीपल अपने वर्क में बिजी रहते हैं एंड इट एक्सीडेंटली कम्स, ठीक है। तो ये है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है। एवरीबॉडी हैव नोटेड? हाँ, ओके, नोट डाउन। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा नया टॉपिक लेते हैं। ओके ओके सर, वीडियो को पॉज करके देखिए। हाँ, वीडियो में अपना देखिए, ठीक है। नहीं देखो तो जाओ, योर न्यू टॉपिक इज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन of
रेनफॉल, ठीक है, हाउ रेनफॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लियर। सो इन डिफरेंट एरिया वी हैव गॉट डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो एरिया कैसा है, ठीक है। तो जैसे पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, रिसीव ओवर 400 सेंटीमीटर, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, ठीक है, एरिया रिसीव्स मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल, ठीक है, इन जगहों पे 400 सेंटीमीटर रेनफॉल, क्लियर। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेस्टर्न कोस्ट कैसा है, जैसे आपका इंडिया का पेनिनसुलर रीजन, ठीक है, दिस इज योर पेनिनसुलर। तो ये जब हम इसको जो है क्या कहते हैं, इसके पार्ट्स करते हैं, तो ये आपका क्या हुआ, वेस्टर्न कोस्ट हमारा क्या हुआ, इधर वेस्ट का, इधर का भी कोस्ट है, ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्ट डायरेक्शन की, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया मीन्स दिस एरिया, दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया हुआ। तो डेफिनेटली यहाँ पे बम्पर बारिश होती है, आपको पता ही है, हमने बताया था, ठीक है। तो यहाँ सब एरिया में 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होगा, क्लियर है सबको, अंडरस्टूड। तो इसके बाद जो है इट इज लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। सेकंड क्या है, रेनफॉल इज लेस देन 60 सेंटीमीटर, या 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है, क्लियर। तो वेस्टर्न राजस्थान दिस इज योर वेस्ट, ठीक है, यहीं पे आपका राजस्थान भी है, आपको पता ही है, राजस्थान में यही है। तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, क्लियर, से भी कम बारिश होती है, एकदम लीस्ट 15 मतलब 15 सेंटीमीटर तक चला जाता है, इतना कम बारिश होती है। एवरेज एनुअल रेनफॉल की बात होती है, ठीक है, इतना पहुँच जाता है, क्लियर। और इसी तरीके से जो एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा, पंजाब, वहाँ भी देखा है, तो रेनफॉल इज इक्वली लो इन इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेटो, ये जो डेक्कन प्लेटो का इंटीरियर है, ठीक है, यहाँ भी लो रेनफॉल, लो रेनफॉल, ठीक है, यही डेक्कन प्लेटो है, इसका इंटीरियर पार्ट, ठीक है, इट हैज वेरी लो रेनफॉल, राइट। और उसके बाद जो है ये रीजन्स जो है लो रेनफॉल रिसीव करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, दे आर मीन्स देयर इज नो हिल्स, यहाँ पे यूराल माउंटेन है, दिस इज यूराल माउंटेन, ठीक है, ये जो यूराल माउंटेन है देयर एवरेज हाइट इज वेरी लो, ठीक है, सो दे कैन नॉट चेक मानसून वेव्स, मानसून वेव बाउंस कर जाती है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ रेनफॉल नहीं होता, ठीक है। अगर यही माउंटेन हमारा क्या है, ऊंचा होता तब यहाँ पे रेनफॉल होता, और राजस्थान भी हमारा डेजर्ट नहीं होता, अंडरस्टूड। ये मेजर रीजन है, क्लियर, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लो हाइट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लो ऑल्टीट्यूड, ठीक है, फीचर, ठीक है, राइट, हाँ, रेनफॉल इज लो इन अबव एरिया, जो ऊपर का एरिया बताया गया है, अबव एरिया क्या है, वेस्टर्न राजस्थान है कि नहीं, और आपके डेक्कन प्लेटो, इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेटो, समझ में आ गया। इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर पहुंचते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी वही हाल है, वहाँ रेनफॉल की जगह स्नोफॉल होता है कि नहीं, देयर इज स्नोफॉल, तो इस वजह से वही स्नो ही हमारा वाटर में कन्वर्ट होता है, क्लियर। और वो कहाँ कलेक्ट रहता है, इन द कैविटीज ऑफ हिल्स,
जम्मू कश्मीर में हिल्स के बीच में ऐसे कैविटीज बने हुए हैं, तो यही ग्लेशियर मेल्ट हो करके उसमें वाटर बन जाता है, ठीक है, और उसी कैविटीज में से वाटर निकलता है, क्लियर, और उसको यूज करते हैं हिल्स में स्पेशली, राइट। और इसी तरीके से ओविंग टू द नेचर ऑफ मॉनसून एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है। हमारे यहाँ का जो एनुअल रेनफॉल है एकदम वैरी करता है, while areas of high rainfall are liable to affected by floods। जब हाई रेनफॉल होगा तब क्या होगा, हाई एरिया ऑफ हाई रेनफॉल, एरिया ऑफ हाई रेनफॉल आर अफेक्टेड बाई फ्लड, ठीक है। वहाँ बाढ़ आती है जहाँ हाई रेनफॉल होगा, तो फ्लड आएगा तो डेफिनेटली हम लोग का रिसोर्स जो है डिस्टर्ब होगा, है कि नहीं, लॉस होगा, लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है, लॉस ऑफ रिसोर्सेज, लॉस ऑफ क्रॉप्स, है कि नहीं, लिवलीहुड इट विल बी डिस्टर्ब, लाइव स्टॉक्स हमारे क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है, जो कैटल्स वगैरह लोग रखते हैं, अंडरस्टूड। तो ये है आपका, राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। मॉनसून हमारे लिए एक बॉन्ड है, इट इज अ फिक्स डिपॉजिट। जैसे हम लोग बैंक में एक बॉन्ड भरते हैं, म्यूचुअल फंड, ठीक है, तो इसी तरह मॉनसून भी हमारे लिए एक यूनिफाइड बॉन्ड है, ठीक है। इसी मॉनसून का हम लोग वेट करते हैं, ठीक है, और इसी से ही हमारा एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी, हमारी कंट्री की जो प्रॉस्पेरिटी है, दैट डिपेंड्स ऑन मॉनसून, अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई इट इज अ मॉनसून बॉन्ड। अब हम इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसी बात में वीडियो देखो, राइट। तो योर मॉनसून एज अ यूनिफाइड बॉन्ड, एज we are bonded with monsoon, right? We do not start our agricultural activities until monsoon comes. We have to know when monsoon is coming, ठीक है। इसके बाद हम लोग टिलिंग एंड कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि हिमालय प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है। हिमालय क्या करता है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हिमालय, understand, means it protect us from cold winds that comes from central Asia। मतलब हाँ, कुछ बच्चों को थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम होती होगी, है ना, तो प्रॉब्लम बेटा यू कम ऑन फ्रंट से पीछे वाला बेटा रेड मास्क, बेटा थोड़ा आगे बैठा करो। Yes. India's climate, ठीक है, India's temperature is comparatively higher than other countries, ठीक है। हमारे यहाँ का क्लाइमेट क्या है, थोड़ा हाई टेम्परेचर वाला है, ठीक है, और स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया इट इज वार्म, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, उसी सेम लैटिट्यूड पे अदर प्लेसेस में देयर इज लो टेम्परेचर, ठीक है, यानी हिमालय में किस तरह हम जाएंगे, देयर इज लो टेम्परेचर, एंड इधर इंडिया में टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है।
So all these moderating influences, इसका रीजन क्या है? ठीक है, इंडिया हैज moderating influence, ठीक है, moderating influence, ठीक है। इंडिया का जो है इस पे moderating influence, why? Because most part of India is peninsular region, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पोर्शन हमारा कोस्टल एरिया ज्यादा है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालना, ठीक है, इफेक्ट डालना, ठीक है। हाँ, हाई है, मॉडरेटिंग, क्लियर। तो इट हैज इन्फ्लुएंस, अंडरस्टैंड, इसका प्रभाव पड़ता है। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस मतलब बहुत कम गर्मी, बहुत कम ठंडी, मतलब इट इज मिनिमम, मीन्स एक तरह से बैलेंस रहता है, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंडी। तो हमारा इतना पोर्शन जो कोस्टल एरिया का है इट इज टोटली मॉडरेटिंग, ठीक है। अब बाकी जो इधर नॉर्दर्न हिमालय है, ठीक है, बस वहीं पे ठंडी पड़ती है, क्लियर। और इंडियन नॉर्दर्न प्लेन में ज़्यादा ठंडी पड़ती है, और जो मिडिल इंटीरियर पोर्शन है वहाँ ठंडी पड़ती है, बाकी सब जगह मॉडरेटिंग है, क्लियर। ये इसका इफेक्ट है। और इसके अलावा द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मॉनसून ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज परसेप्टिबल, ठीक है। मॉनसून इज स्पेशल फीचर, ठीक है, स्पेशल फीचर, मॉनसून का फीचर एक स्पेशल है, ठीक है। इट यूनिफाइज people of all community, whether they are of any religion, any culture, any region, ठीक है, everybody wait for monsoon। ये यूनिफाई करता है, कंट्रीज की यूनिटी को बढ़ाता है, everybody needs this thing, clear। And all these things you have got, various other things। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज क्या है? There is, it provide a rhythmic cycle of season। दूसरा क्या काम है? It provides rhythmic cycle of season, ठीक है। In our country, especially India, there is rhythmic cycle। rhythmic cycle का मतलब आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल, ठीक है, हमारा कोई ना कोई सीजन आता रहता है, कोई ना कोई हमारा फेस्टिवल आता रहता है, ठीक है, वो एक रिथम पे, ठीक है। आपको मतलब जैसे दीपावली का फेस्टिवल आएगा, उसके बाद होली आएगा, फिर उसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, सबका फिक्स है अपना टाइम, ठीक है। तो ये यूनिफाइड है, राइट, इट हैज यूनिटी, क्लियर। Along with this, yes, अभी देखो, हाँ, there are very much typical of monsoon, ठीक है। यहाँ पे इंडिया का जो लैंडस्केप है, इंडिया has diverse, ठीक है, relief feature, ठीक है। इंडिया का जो रिलीफ फीचर है इट इज वेरी डाइवर्स, मीन्स एट सम प्लेस देयर इज हिल, ठीक है, बहुत जगहों पे हिल्स है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे वैली है, कहीं पे रिवर है, ठीक है। तो हमारी जो प्लेन है इट इज डाइवर्स, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है, एनिमल एंड प्लांट लाइफ, ठीक है, ये सब डिफरेंट है, ठीक है। इट हैज different animals and plant life, ठीक है। इसके एनिमल एंड प्लांट लाइफ जो है डिफरेंट है, ठीक है, प्लांट लाइफ, क्लियर। So it is because of its unifying bond, because we are depend on monsoon, ठीक है। Monsoon gives